Good morning, dear students. Today we are reading chapter 8 Land of Hot Sands. In this chapter, we will see about the Saudi Arabia, the land of hot sands, location and climate, vegetation and wildlife, economy and life of the people, important cities. Let's see. Deserts are areas that receive very little or no rainfall. There are two types of deserts, hot and cold deserts. In this chapter, we will study about Saudi Arabia, a country located in the hot desert. So, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो तरह के डेजर्ट यानी रेगिस्तान होते हैं, एक तो हॉट एक कोल्ड यानी एक गर्म और एक ठंडा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में जो कि हॉट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरेबिया Saudi Arabia is the fifth largest country in Asia and the largest country of the Middle East. So, Saudi Arabia क्या है? A fifth largest country in Asia. Now location, Saudi Arabia is situated in the Arabian Desert. The Arabian Desert occupies about 9/10 of the Arabian Peninsula. Saudi Arabia lies between the Red Sea on the west and the Persian Gulf on the east. So, सऊदी अरेबिया का जो लोकेशन है वो कहाँ है? बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट साइड एंड द पर्सियन गल्फ ऑन द ईस्ट साइड. It shares its boundaries with Jordan, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman and Yemen. नाउ इसकी जो बाउंड्रियाँ हैं वो कहाँ कहाँ तक इसकी सीमित है, तो ये कुछ देशों के नाम बताए हैं जिनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है. नाउ लैंड. Most of the central and eastern part of the country has rocky plateaus covered with sand. The desert in the northern part is known as Al Nafud and in the southern part as Rab al Khali. Mountains and plains are found on the western side. There is a shortage of water as no river flows through the country. तो यहाँ का जो ज़मीन के बारे में बताइए, लैंड मीन्स ज़मीन है ना. यहाँ का मोस्ट ऑफ द सेंटर एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ रॉकी प्लेट्यूज कवर्ड विद सैंड. यहाँ पे जो भी एरिया है वो रेत से ढका हुआ है, बट साथ में क्या है? पथरीला. लाइक द डेजर्ट इन द नॉर्थन पार्ट इज़ नोन एज, जो नॉर्थ पार्ट का जो डेजर्ट है उसको अल नाफद के नाम से जाना जाता है और साउथ पार्ट का जो डेजर्ट है उसको रब अल खाली, तो उस नाम से. और दूसरी मेन बात यहाँ है, ये प्लेन्स एंड नॉर्थर्न वेस्ट साइड ऑन द वेस्टर्न साइड देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. क्यों शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है. यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं अपन. Saudi Arabia is considered as one of the hottest places in the world. Its climate remain extremely hot and dry. In summer, the days are hot and nights are cool. In winters, the days are warm and the nights are very cold. Saudi Arabia hardly receives any rainfall. Wild gullies called wades get filled up with water during the occasional downpour. Strong dusty winds blow here. They carry sand from one place to another, forming hills of sand known as sand dunes. सो क्या होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट बता रखा वो एक्सट्रीमली हॉट रहता है. खास करके समर के समय दिन यहाँ के गर्म और रातें थोड़ी ठंडी. लेकिन यहाँ है क्या? सऊदी अरेबिया हार्डली रिसीव्स एनी रेनफॉल. यहाँ सऊदी अरेबिया में बहुत कम मात्रा में कभी कभार बारिश हो जाती है. ठीक है. नाउ वेजिटेशन. The dry climate and little rainfall makes the soil of Saudi Arabia infertile. Therefore, vegetation is scanty here. Cactus, date palms, acacias, and tamarisks
are the most common plants found in this region. Some fruits trees are also grown around the waves. At some places, underground water comes to the surface. Such places are called oases. The land near an oasis is fertile. सी हमने पहले देखा था यहाँ पे क्लाइमेट में देखा था तो क्या था, यहाँ पे जो हवाएं बहती है, हवाएं जो चलती है वो अपने साथ क्या ले जाती है, स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स, तो अपने साथ डस्ट यानी रेत को उड़ा के ले जाती है और उसके द्वारा जो छोटे छोटे पहाड़ों के रूप बनते हैं उसको क्या होता है उससे तो उससे छोटे छोटे जो पहाड़ बनते हैं रेत के पहाड़ उनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। ऐसे ही यहाँ पे वेजिटेशन ऐसा है कि यहाँ पे पानी की कमी के कारण ये कुछ मेन जो ट्रीज प्लांट्स बताए रखे हैं उन वो प्लांट्स यहाँ उगते हैं। साथ ही यहाँ पे कभी कभी अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो दिखाई देता है तो उस जगह को ओसिस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ यानी अनफर्टाइल मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। और द लैंड नियर द ओसिस इज़ फर्टाइल, जो पानी के पास वाला जो जगह है वो उसको थोड़ा फर्टाइल यानी उपजाऊ रूप में माना जाता है। सो वी हैव सीन दिस इन दिस क्लास, टूडेज क्लास। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्लास, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमी, लाइफ ऑफ द पीपल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में। उससे पहले हैंस क्रॉप्स लाइक वीट, बैर्ली, रागी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस रीजन्स। जो जहाँ पे पानी अभी हमने देखा ओसिस उस जगहों में इन चीज़ों को उगाया जाता है। सो टुमारोज क्लास वी विल सी वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमी एंड पीपल ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल एज वेल एज मेन सिटीज़। ओके, थैंक यू।